Hello everyone, welcome to our channel all about homeopathy. In our previous video, we have seen about the classification of the hypersensitivity reaction, and we have seen in that video that how hypersensitivity reaction is classified into two main types, that is immediate and delayed type. And after that, we have seen how Comben gel classified hypersensitivity reaction in four major types, that is type 1, type 2, type 3, type 4. And after that, one more type was described, that is type 5 hypersensitivity reaction. And in this video we will study about type 1 anaphylactic reaction in detail. Okay, antibodies IgE are fixed on the surface of the tissue cell in sensitized individual. So जो sensitized individual होते हैं, like, and you will ask what is sensitized individual. तो सेंसिटाइज इंडिविजुअल वो होते हैं जैसे कि जो प्रीवियसली किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आए हैं. जैसे कि अब ये नॉर्मली क्या होता है, अगर हम किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो हम इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप कर लेते हैं, बट वो क्या होते हैं, that individual becomes sensitized, and after that if more antigen of that same time will come, they will show hypersensitivity reaction. Okay, so this type of individual are hypersensitized individual who have previously came in contact with the antigen. Okay, तो जो ऐसे इंडिविजुअल रहते हैं वो एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं IgE टाइप की. मतलब डेवलप नहीं करते, IgE टाइप हमारे बॉडी में पहले से होते हैं, मतलब उनका जो टिश्यू के सरफेस के ऊपर है वहाँ पे IgE टाइप के एंटीबॉडीज बाइंड कर रहे थे. ठीक है, the antigen combines with the cell-fixed antibodies, leading to release of pharmacologically active substance which produce the hypersensitivity reaction. तो हम इसको डिटेल में देखेंगे through this. See here, this is mast cell. Suppose this is a mast cell of sensitized individual, the individual which have previously came in contact with the antigen. ठीक है, तो फिर उसके जो मास्ट सेल के ऊपर वो IgE एंटीबॉडीज़ है वो आके बाइंड करेंगे. ठीक है, वो एंटीबॉडीज़ आके बाइंड किए, फिर अगर वो इंडिविजुअल सेम एलर्जन के कांटेक्ट में वापस आता है तो वो जो IgE एंटीबॉडीज़ बाइंड किया है मास्ट सेल के ऊपर, तो ये एंटीबॉडीज़ और ये एलर्जन दैट इज़ एंटीजन, तो ये एंटीबॉडी और एंटीजन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, जिसके वजह से मास्ट सेल के अंदर से there will be release of mediators, and this whole reaction is called as anaphylactic reaction, or you can even call it as type 1 hypersensitivity reaction. So once again we will revise this reaction, that this is, suppose this is a mast cell of sensitized individual. Sensitized individual is those who have previously came in contact with the antigen. ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ मास्ट सेल के ऊपर जाके बाइंड करेगी. ठीक है, IgE एंटीबॉडीज बाइंड, और जो टाइप 1 रिएक्शन है दैट इज़ मेडिएटेड बाय IgE एंटीबॉडी. फिर एलर्जन आया, एलर्जन ने एंटीबॉडी के साथ बॉन्ड बनाया. बिकॉज ऑफ दिस एंटीबॉडी एंटीजन बॉन्ड देयर विल बी रिलीज ऑफ फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम द मास्ट सेल. Because of this bond, there will be release of pharmacologically active substance from the mast cell, and this whole reaction is called as type 1 antibody reaction. Okay, I hope you have understood this reaction. So let's get started with the theoretical part. Okay, anaphylaxis is the classical example of type 1 hypersensitivity reaction. ठीक है, तो anaphylaxis is the classical example of type 1 hypersensitivity reaction. Okay, it is IgE mediated reaction. This is very much important, that type 1 reaction is IgE mediated. Okay, so you should double underline this statement that type 1 reaction is IgE mediated reaction. So we will do double underline to this statement that it is IgE mediated reaction. ठीक है, the term anaphylaxis का मतलब क्या होता है, what is meaning of anaphylaxis? Ana means without and phylaxis means protection, that is anaphylaxis means without protection.
which was described by Rickett in 1902, who observed that dogs which had survived a sublethal dose of toxic extract of C. anemones were rendered highly susceptible to minute dose of the same extract given days or weeks later instead of becoming immediate. तो ये स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है कि जो रिकेट्स है ना, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो डॉग्स हैं जो पहले एक सब लीथल डोज के कांटेक्ट में आए हैं सी एनॉम्स के, अगर उन लोग को वापस वही सी का एनॉम्स दिया जाता है, मतलब दैट टॉक्सिक डोज इफ़ दे आर गिवन अगेन, तो दे बिकम हाईली ससेप्टेबल, मतलब इम्यून होने के बदले उनमें और वो ज़्यादा मतलब ससेप्टेबल हो जा रहा है, मतलब उन पर और ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिलता है। तो इसलिए उन्होंने उसको टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में बोला है। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव ऑकर इन 2 फॉर्म। फर्स्ट इज एनाफाइलेक्सिस एंड सेकेंड इज एटोपी। ठीक है, टाइप 1 रिएक्शन इज इन 2 फॉर्म, एनाफाइलेक्सिस एंड एटोपी। ठीक है, तो हमें क्या पता चलता है इस पूरे पैराग्राफ से? एनाफाइलेक्सिस इज़ अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और ये रिएक्शन IgE मेडिएटेड है, IgE एंटीबॉडी के मेडिएटेड है। टाइप 1 रिएक्शन इज़ IgE एंटीबॉडी मेडिएटेड। फिर उसके बाद में इन्होंने बताया, रिकेट्स ने 1902 में बताया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनाफाइलेक्सिस। एना मीन्स विदाउट, एनाफाइलेक्सिस मीन्स प्रोटेक्शन, दैट इज़ विदाउट प्रोटेक्शन। और उन्होंने बोला जो डॉग्स है जो एक सब लीथल डोज ऑफ टॉक्सिक के सी एनॉम्स के कांटेक्ट में आए हैं, अगर उन्हें वापस से वो उस टॉक्सिक के कांटेक्ट में आते तो एक बहुत हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करते हैं। मतलब अभी कैसे कोई किसी के कांटेक्ट में आया तो दे बिकम इम्यून टू दैट, बट दे डोंट बिकम इम्यून, दे शो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ओके, हम इतना पता चला। फिर हमने देखा टाइप 1 रिएक्शन ऑकर इन 2 फॉर्म्स, दैट इज एनाफाइलेक्सिस एंड सेकेंड इज एटोपी। अभी हम देखेंगे व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एनाफाइलेक्सिस। अभी लेट्स सी, एनाफाइलेक्सिस ऑकर व्हेन अ सेंसिटाइज्ड इंडिविजुअल कम इन कांटेक्ट विद अ शॉकिंग डोज ऑफ एंटीजन। अभी एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन कब होता है? जब एक सेंसिटाइज्ड इंडिविजुअल है वो शॉकिंग डोज के कांटेक्ट में आता है। व्हाट इज सेंसिटाइजेशन एंड व्हाट इज शॉकिंग डोज? सेंसिटाइज इंडिविजुअल वो होता है जो पहले किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आया है एंड ही डोंट बिकम इम्यून टू दैट एंटीजन, मतलब वट एवर इट इज़ एंटीजन, बट ही शो hyper sensitivity reaction, that individual is sensitized individual. And shocking doses, if previously that individual has came with that antigen, contact with that antigen, and again the same antigen is given to that individual, then that is shocking dose. तो एनाफाइलेक्सिस कब होगा? जब एक इंडिविजुअल सेंसिटाइज हो जाता है एक एंटीजन से और वापस से वही एंटीजन को दी जाती है, तो दैट पर्सन विल शो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ओके, सेंसिटाइजेशन में ऑकर बाय एनी रूट सच एज पेरीनेट्रल रूट, इनहेलेशन, इंजेक्शन, बट मोस्ट इफेक्टिव इज पेरीएंट्रल रूट। मतलब सेंसिटाइजेशन किसी भी रूट से हो सकता है, इनहेलेशन, इंजेक्शन, पेरेंट्रल, बट द मोस्ट इफेक्टिव इज पेरीनेट्रल रूट। और एंटीजन एज वेल एज हैप्टिन में इंड्यूस एनाफाइलेक्सिस, मतलब अभी चाहे वो एंटीजन हो हैप्टिन हो, दोनों के थ्रू सेंसिटाइजेशन होगा। एंड इंटरवल ऑफ 2 to 3 वीक इज रिक्वायर्ड बिटवीन सेंसिटाइजेशन एंड शॉकिंग डोज। कितना टाइम पीरियड होगा? 2 to 3 वीक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर सेंसिटाइजेशन शॉकिंग डोज, during which the cytotoxic antibodies IgE, previously known as reagent body, produces against the antigen attached to the surface of mast cell and basophilic cell. अब ये देखो इस स्टेटमेंट से क्या होता है, उसने क्या बोला? 2 to 3 वीक्स रिक्वायर्ड होगा उन्हें टू मतलब सेंसिटाइजेशन और शॉकिंग डोज के बीच में 2 to 3 वीक्स होना चाहिए। तो अभी 2 to 3 वीक्स के बीच में क्या होगा? जो ये मास्ट सेल है उसके ऊपर IgE एंटीबॉडीज़ आके बाइंड करेगी। अगर ये एंटीबॉडीज़ बाइंड ही नहीं किए रहेगी तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा ही नहीं, तो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस रिलीज ही नहीं होगा। इसलिए 2 to 3 वीक्स का टाइम पीरियड चाहिए होता है जिसके बीच में ये एंटीबॉडीज़ यहाँ पे बाइंड कर लेंगी। तो सेंसिटाइजेशन और शॉकिंग डोज के बीच में कितना टाइम पीरियड चाहिए? 2 to 3 वीक्स। तो ये प्रोसेस होता है 2 to 3 वीक्स के बीच में। ठीक है,
इतना देख लिया हम लोग ने। IgE मॉलिक्यूल्स बाइंड दिस रिसेप्टर थ्रू FC एंड, और IgE एंटीबॉडीज़ किससे के थ्रू बाइंड करती है, दैट इज FC एंड के थ्रू। वन सेंसिटाइज द इंडिविजुअल रिमेन सो फॉर अ लॉन्ग पीरियड, मतलब एक बार सेंसिटाइज हो गया तो वो हम ऑलमोस्ट हमेशा के लिए सेंसिटाइज रहता है। When a shocking dose of the same or immunologically related antigen is given, the antigen combines with the cell-borne IgE antibody or mast cell rapidly. तो अभी मैंने क्या बोला था, अभी ये एंटीबॉडीज है IgE एंटीबॉडीज, दिस आर IgE एंटीबॉडीज, ठीक है। अभी ये IgE एंटीबॉडीज है, तो ये क्या करेगा, ये एलर्जन, एंटीजन, हैप्टेन जो भी है, ये जाएगा IgE एंटीबॉडीज से बाइंड कर लेगा। अब ये बाइंड करेगा तो यहाँ से फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस रिलीज होगा, जिसकी वजह से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होंगे, ठीक है। द एंटीजन कंबाइंस विद द IgE एंटीबॉडीज ऑन द मास्ट सेल, देखो ये एंटीजन ने किससे कंबाइन किया, IgE एंटीबॉडीज ऑन द मास्ट सेल, ठीक है। द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, दिस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स stimulates mast cell to release mediators that causes clinical manifestation of anaphylaxis। तो ये जो बॉन्ड है इसकी वजह से इसमें से मेडिएटर्स रिलीज होते हैं जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कॉज करते हैं, ठीक है। अभी शॉकिंग डोज इज़ मोस्ट इफेक्टिव व्हेन गिवन इंट्रावेनसली। अभी शॉकिंग डोज मैंने बताया ना, जो एंटीजन वापस कांटेक्ट में आएगा सेंसिटाइज इंडिविजुअल की, तो वो दैट इज़ शॉकिंग डोज। अभी वो कब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा, जब उसको इंट्रावेनसली देंगे, जब हम लोग किसी वेन्स के थ्रू हम लोग बॉडी में इंड्यूस करवाएंगे, तो दैट विल बी द मोस्ट इफेक्टिव। लेस इफेक्टिव व्हेन सबक्यूटेनियसली। सबक्यूटेनियस क्या होता है, व्हेन इट इज़ गिवन इन स्किन, एंड सबसे कम इफेक्टिव होगा व्हेन इट इज़ गिवन इंट्राडर्मली। इंट्राडर्मली क्या होता है, व्हेन इट इज़ गिवन इन डर्मिस। डर्मिस, इफ़ यू हैव स्टडीड द स्किन in your first year BHMS, you will recall that what is dermis. Dermis, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बीच का पार्ट है, दैट इज़ डर्मिस, वहाँ पे रहेगा तो लीस्ट इफेक्टिव। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इंट्रावेनसली, उससे कम सबक्यूटेनियस, सबसे कम डर्मली, इंट्राडर्मली, ओके। नाउ सी, अभी हम लोग ने देखा था कि जब भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा तो मास्ट सेल के अंदर से कुछ क्लिनिकली एक्टिव सब्सटेंस रिलीज़ होंगे, मेडिएटर्स रिलीज़ होंगे जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कॉस्ट करेंगे। तो वो कौन से केमिकल मेडिएटर्स है, वी विल स्टडी हियर, ठीक है। अभी देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेडिएटर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेडिएटर्स। प्राइमरी मेडिएटर्स है जो मास्ट सेल, देखा था मास्ट सेल के ऊपर हम लोग ने एंटीबॉडीज FC बॉन्ड के थ्रू अटैच हुई थी, जिससे एंटीजन अटैच थे, ठीक है। तो अभी जो मास्ट सेल है उसमें से पहले से ही, मतलब जब मास्ट सेल होता है उसमें पहले से ही कुछ कुछ सब्सटेंस होते हैं। अगर दैट देयर आर प्री फॉर्म सब्सटेंस, मतलब पहले से बने हुए प्री फॉर्म कॉन्टेंट्स है मास्ट सेल के, तो हम लोग उसको प्राइमरी बोलेंगे। या फिर सेकेंडरी किसको बोलते हैं हम लोग, जो मास्ट सेल है उसमें कुछ स्टिमुलस दिया जाएगा जिसकी वजह से वो सब्सटेंस बनेंगे, तो देन दैट इज़ सेकेंडरी केमिकल मेडिएटर्स। तो प्राइमरी केमिकल मेडिएटर्स वो है जो पहले से बने रहेंगे मास्ट सेल के अंदर। सेकेंडरी मेडिएटर्स वो है जो कोई स्टिमुलाई के थ्रू बनते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, द केमिकल मेडिएटर्स आर ऑफ टू टाइप, ठीक है, दो टाइप के होते हैं। प्राइमरी मेडिएटर विच आर फॉर्म प्री फॉर्म कॉन्टेंट ऑफ द मास्ट सेल, तो जैसे मैंने बोला कि वो पहले से बने हुए कंटेंट रहते हैं मास्ट सेल के, तो दैट इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी। एंड बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स, ठीक है, दे आर प्री फॉर्म कंटेंट ऑफ mast cell and basophilic granules. And the secondary mediators which are newly formed upon stimulation of mast cell, basophil and other leukocytes। मतलब वो secondary mediators क्या होते हैं, जो हम लोग कोई स्टिमुलाई देंगे बेसोफिल, मास्ट सेल और ल्यूकोसाइट के, तो अगर उसके अंदर वो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है देन दैट इज सेकेंडरी मेडिएटर्स। अभी लेट्स जस्ट क्विकली वी विल सी what are primary mediators and what are secondary mediators. We will not study deeply about this because that are not much important. That is first histamine, serotonin, eosinophilic chemotaxis factor of anaphylaxis, proteolytic enzyme. These all are primary mediators, ठीक है। histamine, serotonin, eosinophilic chemotactic factor of anaphylaxis, proteolytic enzyme, these all are
प्राइमरी मेडिएटर. And what are secondary mediator? Slow acting substance. तो स्लो एक्टिंग सब्सटेंस प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, साइटोकाइन सच एज इंटरल्यूकिन 3, इंटरल्यूकिन 6, GM-CSF, इंटरल्यूकिन 1, INF अल्फा, INF गामा. ठीक है, दिस आर सेकेंडरी मेडिएटर्स, दिस आर प्राइमरी सेकेंडरी. ठीक है, अब now we will see what are the features of anaphylaxis. Anaphylaxis occur within a few seconds to few minutes following shocking dose of antigen. As we have already seen that type 1 hypersensitivity reaction come under immediate response. तो of course ये तुरंत मतलब few seconds में अपना एक्शन शो करेगा. मतलब जैसे ही that individual sensitized individual will come in contact with the shocking dose, he will anaphylaxis reaction will occur. Cytotoxic Ig antibodies is responsible. As we have already seen that type 1 hypersensitivity reaction is IgE mediated. So Ig antibodies is responsible for anaphylaxis reaction. Tissues or organs which are affected in anaphylaxis are called as target tissue or shock organs. अभी हम लोग ने देखा था कि जैसे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उसमें से कुछ केमिकल मेडिएटर्स रिलीज होंगे जिसकी वजह से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा. तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा तो वो किसी ऑर्गन पे एक्ट करेंगे. तो जिस ऑर्गन पे एक्ट करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं टारगेट टिश्यू या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं शॉक ऑर्गन्स. अभी जैसे लंग इज़ द प्रिंसिपल शॉक ऑर्गन इन ह्यूमंस. अभी जो हम ह्यूमंस हैं उनमें प्रिंसिपल ऑर्गन क्या है? लंग है. अभी ब्रोंकियोस्पाज्म हो